Hello friends, this is Ellen Murthy, your truly friend. Hope you are doing well. Welcome you all in my session. Let us begin our journey. Today we will continue from previous class. Today I will take exercise 10.2 of circle chapter. दोस्तों आज आप सभी का स्वागत है. आज हम जो है 10.2 प्रश्नावली के सर्कल चैप्टर यानी वृत्त के चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे. In previous class I have given 2 questions as homework. Please check your solution along with question. This is in your screen. This is question number 1 and this is answer. Please check properly. And this is question number 2 and this is the answer. Check properly. Okay friends, let us start today's session with question number 1 of exercise 10.2 circle chapter. The first question, this is in your screen. I will read in English first. Question number 1, 10.1. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, there are 4 options. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फ्रेंड्स. एक हिंदी में एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है. वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए. यह हमने 10.1 में भी कुछ क्वेश्चन किए थे. इस तरह 10.2 है ये वाला. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं. चलिए इसका आंसर के लिए. ओके फ्रेंड्स, सी here I draw the diagram whatever asked in the question. It is a multiple choice question but you have to calculate to get the answer. Okay, उत्तर को प्राप्त करने के लिए हम लोग को इसको हल करना पड़ता है. तो यहाँ पर हम दे दिया here PQ equal to 24 centimeter and OQ equal to 25 centimeter. PQ is a tangent. Okay, radius we have to calculate. यहाँ पर PQ 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा है और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है. हमको त्रिज्या हमको ज्ञात करना है और आंसर 4 ऑप्शन दे दिया है. तो उसमें कौन सा सही ऑप्शन है हम लोग करना है. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ. Why we took OPQ? Because we know that OP is perpendicular to PQ. OP is always perpendicular to PQ because the radius always perpendicular to the tangent point. यानी त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु में जो है लंब होती है. The radius always perpendicular to the tangent point of the tangent. So in right angle triangle OPQ, OQ square equal to, we will apply the Pythagoras formula, OP square plus PQ square. So very easy by Pythagoras से हिंदी में. Okay friends, now put the values whatever given here. OQ 25 square, OP we have to calculate and PQ 24 square. Okay, now here 25 square, 25 into 25, 625 equal to OP square plus 24 into 24, 576. You can do in rough work. Okay, now this is 625 minus 576 equal to OP square. Now subtract, after subtracting we get 49. Okay friends, 49 equal to OP square, that is OP equal to plus minus root over 49. Okay, now we will get OP equal to, only we took this one is plus value, OP equal to 7, that is the radius is 7. The option A is correct. Okay friends, तो यहाँ पर once again यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, ये दिया हुआ है. Whatever given in the question I wrote here. Since OP perpendicular to PQ, you can write here radius perpendicular to tangent. Radius always perpendicular to the tangent point. Okay, this is a witness. त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होते हम लिख सकते हैं. कई बार हम लोग लिख चुके हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ये लिया है
इसका बाद पाइथागोरस का फार्मूला यूज करके वो भी हमने निकाल दिया, ये आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट, दिस इज इन योर स्क्रीन। सी, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that POQ equal to 110 degree, then P2Q is equal to, see friends, हिंदी में, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री है, तो P2Q क्या होगा, यानी इधर भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके फ्रेंड्स, सी द क्वेश्चन नंबर 2, 10.2 एक्सरसाइज। प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 2, इसमें जो डायग्राम है ये ऐसा दिया हुआ है, 110 डिग्री जो है यहाँ पर POQ दिया हुआ है, 110 डिग्री। तो वी हैव टू कैलकुलेट PTQ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PTQ, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग देखते हैं। नाउ गिवन TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, TP and TQ are tangents। ओके, TP और TQ क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। TP और TQ स्पर्श रेखा है। ठीक है, और एंड गिवन POQ equal to 110 degree and PTQ, angle PTQ equal to question mark, we have to calculate। okay friends, now here OPQ, we know that what we know that OPT or OQT, this one, OP perpendicular to the PT, why, because the radius always perpendicular to the tangent। now here OPT, we know that OP perpendicular to PT and OQ perpendicular to QT, why, the radius always perpendicular to the tangent, or the tangent point always perpendicular to the radius। so we can write here radius perpendicular to the tangent point। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ये फिटनेस हम लोग। therefore OPT 90 डिग्री हम ले सकते हैं, एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, एंड OQT आल्सो 90 डिग्री। therefore तो ये दोनों 90 डिग्री हो गया है। नाउ दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, सी हियर PTQO, this is the quadrilateral। now the sum of the 4 angles of the quadrilateral is 360 degree। now you can write here from quadrilateral PTQO, ठीक है, हिंदी में चतुर्भुज PTQO से। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए। नाउ टेक द एंगल्स, एंगल OPT प्लस PTQ, एंगल PTQ प्लस एंगल POQ प्लस OQT, एंगल OQT इक्वल टू 360 डिग्री। Why? The sum of the angles of quadrilateral always 360 degree। okay, you can write here the sum of angles of quadrilateral okay।
यहाँ पर चतुर्भुज के कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, कोणों का योग हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नो पुट द वैल्यू OPT 90 डिग्री प्लस PTQ वी हैव टू कैलकुलेट प्लस POQ 110 degree already given plus OQT that is also 90 degree equal to 360. Now add it 290, 200 plus 90, 290 plus PTQ equal to 360 degree. 290 transfer it. Now PTQ equal to 360 minus 290. Okay friends, this is equal to 70 degree. Now PTQ equal to 70 degree. They asked PTQ. Okay, the option number B is correct. Okay, now see once again, it's very very important. There are various methods to solve this one friends. ये बहुत सारा विधियों से जो हम लोग कर सकते हैं, या मैं कंस्ट्रक्शन करके भी हम कर सकते हैं, फिर अब कई तरह का जो है इसको हम लोग कर सकते हैं. ये सिंपल है, सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स है उसका यूज़ करके हम लोग कर लिया है. नाउ व्हाट इज गिवन है, TP एंड TQ आर टेंजेंट्स. ओके, TP और TQ जो है स्पर्श रेखाएं हैं. POQ 110 डिग्री, PTQ पूछा है. OP परपेंडिकुलर टू PT और OQ परपेंडिकुलर टू QT. देखिए OP परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ परपेंडिकुलर टू, नाउ हियर OP perpendicular to TQ. Now from quadrilateral P to PTQO, चतुर्भुज PTQO से सभी एंगल्स हमने, I took all the angles of this quadrilateral. We know that the sum of the angles of the quadrilateral is 360 degree. चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो है 360 अंश का होता है. तो उसका वैल्यू सब में मैंने रख दिया है और PTQ क्या निकाल दिया है. दिस इज द आंसर. बी ऑप्शन जो है हम लोग यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. वृत्त चैप्टर मैं अभी करा रहा हूँ 10.2 प्रश्नावली. क्वेश्चन नंबर 4, हियर दिस इज इन योर स्क्रीन. आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट. प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल. हिंदी में सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है. ठीक है, चलिए करते हैं हम. ओके फ्रेंड्स, सी आई ड्रॉ द डायग्राम वॉट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन. दिस इज लाइक थ्योरम. ओके, गिवन टू प्रूव. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन हियर फ्रॉम द क्वेश्चन. सी गिवन दिया है AB इज ए डायमीटर. ओके, AB इज डायमीटर. डायमीटर के एंड्स में जो है जो टेंजेंट्स खींचा गया है वो पैरेलल हम लोग प्रूव करने. वी हैव टू प्रूव द टेंजेंट्स ड्रॉन द एंड्स ऑफ द डायमीटर. ओके, जो डायमीटर के एंड्स में जो टेंजेंट्स है खींचा है उनको पैरेलल हम लोग को प्रूफ करना है. ओके, तो गिवन क्या है, AB इज ए डायमीटर. ओके, AB एक व्यास है वृत्त का. AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल. ठीक है फ्रेंड्स, इसका बाद दिया हुआ है एंड PQ XY आर टेंजेंट्स एंड PQ वॉट एवर गिवन सिंपली राइट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, PQ कॉमा XY आर टेंजेंट्स. ठीक है, दिस आर इन इंग्लिश, बट इन हिंदी राइट AB एक व्यास है. AB वृत्त का व्यास है. व्यास है कॉमा. ठीक है, व्यास है. और क्या दिया हुआ है, XY और PQ कॉमा XY स्पर्श रेखाएं हैं. ये दिस इज द गिवन. ठीक है, नाउ टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव.
हिंदी में सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, ओके। नाउ सिद्ध हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? नाउ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू और पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है। नाउ दिस इज प्रूफ, प्रूफ हिंदी में उत्पत्ति, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब पैरेलल्स के लिए प्रॉपर्टीज क्या है हम लोग जानते हैं, 6 में हम लोग पढ़े हैं, 7th में इसका रिकॉल हुआ है, 8th में भी हम लोग आगे बढ़े। तो पैरेलल क्या प्रॉपर्टी है? अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो ये पैरेलल होगा, सिंपल। अगर अल्टरनेट एंगल से पैरेलल होगा, पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स होगा, वाइस वर्सा। सो वी हैव टू प्रूव these angles are alternate angles. Yes, definitely this is OB is always perpendicular to tangents. Why? The radius always perpendicular to the tangent point of the tangent. So this is 90 degree. Okay. Similarly, OAY, yeah, also a 90 degree. Why? The OA is the radius always perpendicular to tangent point of the tangent. तो त्रिज्या जो है हमेशा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। हम लोग ने ये थ्योरम ऑलरेडी हम लोग कर लिए हैं। सो दिस प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, यही प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। देखिए यहां पर लिखेंगे प्रूफ में, tangents at any point of a circle perpendicular to the radius. We know that tangent or at any point of a circle, at any point of a circle, tangent at any point of a circle always perpendicular to the radius, perpendicular to the radius. अब सिंबल यूज कर सकते हैं यहां पर रेडियस। तो हिंदी में इसको हम लिखेंगे स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ये कंडीशन लिखा हुआ है। देयरफॉर व्हाट विल हैपन, कम ऑन फ्रेंड्स, वो ये परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, देयरफॉर वो ये परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, कॉमा वो भी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, वो भी परपेंडिकुलर टू पी क्यू लिख दिए। देयरफॉर क्या होगा, वो बी पी या ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, वाई दैट्स ऑलरेडी डन, दैट इज वो ये परपेंडिकुलर, वो भी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ हियर बी ए वाई, एंगल बी ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज ओ ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, वो ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। already wrote here the condition. Okay, now from 1 and 2, from 1 and 2 हिंदी में समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से लिखने से ही बस है। तो क्या होगा, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक सेम होगा। नाउ देयरफॉर एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल बी ए वाई। देखिए ए बी पी यानी ए बी पी इक्वल टू बी ए वाई, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल की तरह है, मतलब कंप्लीट हो गया है। तो विचार यहां पर लिख सकते हैं, विच आर अल्टरनेट एंगल्स, हिंदी में एकांतर कोण है। Therefore, yes, PQ parallel to
XY, this is proved, इति सिद्धम। ठीक है फ्रेंड्स, सो वेरी इजी। आप इसी तरह सिस्टमैटिक हम लिखते हैं गिवन टू प्रूव प्रूफ। गिवन में क्या दिया हुआ है, वंस अगेन सी हियर, AB इज द डायमीटर, AB एक व्यास है वृत्त का, PQ XY आर टेंजेंट्स, PQ और XY वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं। नाउ व्हाट टू प्रूव, PQ XY पैरेलल है, PQ एंड XY पैरेलल, क्योंकि द लाइन ड्रॉन एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल करके हम लोग प्रूफ करना है। तो प्रूफ, उत्पत्ति, टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कोई भी पॉइंट में, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस का परपेंडिकुलर होगा हर जगह में। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होती है। हम यहां पर कंडीशन लिख दिया, देयरफॉर ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए, और ये थ्योरम ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। देयरफॉर ABP इक्वल टू 90 डिग्री, तो ABP 90 डिग्री एंड BAY 90 डिग्री। तो क्या होगा, दोनों सेम हैं, तो ये भी ऑटोमेटिक फ्रॉम 1 and 2, ABP इक्वल टू BAY। द विच आर अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण है, तो क्या होगा, PQ पैरेलल टू XY। तो लास्ट में हम लिख देंगे वॉट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन हैंस करके द टेंजेंट्स, पूरा लास्ट तक आप लिख लीजिए। प्रश्न में जो दिया हुआ है हिंदी में भी, अतः जो थ्योरम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूफ दैट छोड़ के बाकी सब जो है यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। शैल वी प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इन योर स्क्रीन। I will read English first. Prove that the perpendicular at the point of the contact to the tangent to a circle passes through the center. हिंदी में सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए, ये ऑलरेडी हम लोग जो इसका ऑपोजिट है, ये हम केंद्र से त्रिज्या के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर हम लोग खींचे थे, लंब होता है, अब ये उल्टा है। जो सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अस डू, कम ऑन। ओके फ्रेंड्स, सी हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 10.2। वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर, AB बी द टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर O। देखिए, सर्कल है, AB बी द टेंजेंट ऑफ सेंटर O। लेट O डैश बी द अनदर सेंटर of circle, O dash be another center, I took another center O dash, okay। now AB वृत्त जिसका केंद्र वो है, जिसका स्पर्श रेखा AB है, AB वृत्त O का स्पर्श रेखा है, ठीक है। O dash एक और केंद्र माना, यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माना एंड लेट, दिस इज ओके, यहां पर लेट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टू प्रूव, सिद्ध करना है कि perpendicular at point C passes through the center, स्पर्श सेंटर। तो ये जो perpendicular हम खींचेंगे, यहां पर एक perpendicular है, ये सेंटर से होता हुआ जाता है करके हम लोग प्रूफ करना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ हिंदी में स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गए लंब, ये जो लंब है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो इसलिए एक और सेंटर लेके हम लोग को जो है इसको प्रूफ कर रहे हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन, नाउ सी कंस्ट्रक्शन, हिंदी में रचना। रचना में हम यहां पर इस पॉइंट को हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे इसका साथ। नाउ ज्वाइन O डैश C, हिंदी में O डैश C को मिलाया, ठीक है, O डैश C को मिलाया, ठीक है, ज्वाइन O डैश C। तो अब यहां पर हम लोग प्रूफ उत्पत्ति, हिंदी में उत्पत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्पत्ति। नाउ OC परपेंडिकुलर टू AB, यू नो, OC perpendicular to AB. Why? Because the radius always perpendicular to the tangent, or
tangent point of a tangent always perpendicular to the radius. त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होती है. Now here OC perpendicular to AB. OC perpendicular to AB. Why? Because yes, tangent or radius always perpendicular to the tangent. ठीक है फ्रेंड्स, त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, हम लिखना है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है. ठीक है, OC परपेंडिकुलर, therefore OCB equal to 90 degree. Therefore angle OCB equal to 90 degree. This is equation number 1. Okay, now let O dash C. Now O dash C perpendicular to AB, perpendicular to AB. यह हम लोग लेट लिया है. Now therefore क्या क्या एंगल O dash CB इक्वल टू 90 डिग्री. इक्वेशन नंबर 2. अब ये सेंटर है तो ये OC अगर रेडियस है तो क्या होगा, OCB ऑलवेज 90 डिग्री. व्हाई? द रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ये लेट है तो फ्रॉम 192 1 और 2 से, तो राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक सेम होगा. OCB इक्वल टू एंगल O डैश CB. क्या ये दोनों एंगल क्या सेम है फ्रेंड्स? फ्रॉम 192 दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल. यू राइट डाउन, दिस इज impossible. Why? Unless वो coincide with O dash, वो coincide with O dash. यहां हिंदी में लिखेंगे यहां असंभव है, यहां असंभव है जब तक कि अनलेस, जब तक कि वो डैश संपाती हो. आप ग्राफ में भी संपाती शब्द सुने हैं, संपाती हो. देखिए दिस इज इम्पॉसिबल अनलेस वो कॉन्साइड विथ ओ डैश. इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, यस, इट मीन्स वो सी दिस इज द passes through the center, which is impossible coincide with. So the our assuming is wrong. So our assuming is wrong. हम जो माने हैं वो गलत है. हिंदी में लिख लीजिए, हमारा माना हुआ तथ्य गलत है. Therefore आप क्वेश्चन में जो पूछा है वो लिख दीजिए. क्या पूछा है उसमें? आप perpendicular to the perpendicular is passes through the center. Therefore hence आप जो भी लिखा हुआ है वो लिख दीजिए. अतः लास्ट में क्वेश्चन में once again friends see here, ये सर्कल है, टेंजेंट दिया हुआ है, सेंटर. नाउ वट एवर गिवन इन द आई रोट हियर टू प्रूफ, सिद्ध करना है परपेंडिकुलर टू एनी पॉइंट सी पासेस थ्रू द सेंटर. तो यहाँ पर एंस यही वाला यहाँ पर देख के लिख दीजिए. स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा से खींचे गया लंब वृत्त के केंद्र से होता है. यहाँ पर लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन, रचना, जॉइंट ओ डैश सी को मिलाया. प्रूफ, उत्पत्ति में हम OC परपेंडिकुलर टू AB, OC परपेंडिकुलर टू AB क्यों है इसका रीजन यहां पर दिया हुआ. विटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. नाउ देयरफॉर OCB इक्वल टू 90 डिग्री, O डैश C परपेंडिकुलर टू AB और O डैश CB इक्वल टू 90 डिग्री. फ्रॉम 192
दोनों एंगल सेम हो गया। तो दोनों एंगल सेम कैसा होगा, वही कि नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल अनलेस वो कॉन्साइड विथ ओ डैश, ये ओ डैश जो है इसका कॉन्साइड में आ जाता है, यानी संपाती हो जाता है, तब जो है यह हमारा सही होगा। इसलिए परपेंडिकुलर टू एट एनी पॉइंट सी पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी, आप स्नैप भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई हैव गिवन 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन एज होमवर्क। गृह कार्य के रूप में 2 अतिरिक्त मैंने प्रश्न दिया हुआ है। यह दिस इज इन योर स्क्रीन, वॉच प्रॉपरली एंड डू प्रॉपरली। Okay friends, thank you so much for watching my session. Sincerely, we will meet again. Till then, practice constantly, stay safe and stay healthy. Thank you, bye bye.